सर ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਆਫ ਹੈ ਜੀ। Thank you so much. Yeah. Well, I said so many things. काफी चीजें बोल दी थी. All right, thank you so much. Yeah. So yeah, I was saying that we have done this few topics over. We have done the ZIFT, IVF. ये हमने यहाँ पे किए थे. Now I hope it's open. Yeah. All right. Thanks. So you have up to 8 blastomer stage के अंदर आप जो transfer करते हो अपने यहाँ पे zygote को, that is going to be transferring in the fallopian tube. That's a ZIFT. And if you have a blastomere stage, अगर आपका 8 क्यों आगे चला जाता है, if you have a zygote which has more than 8 blastomere like 1632, then in that case will transfer into uterus. So these are the few things we have seen. उसको हम बोलते हैं intrauterine transfer. Okay, ये कुछ हमने यहाँ पे सवाल भी देख लेते हैं. Then we have discussed GIFT. आपको ये क्लियरली मालूम होना चाहिए कि ये जो कंडीशन हुई GIFT आपका हो गया या ZIFT हो गया, ये आप कौन से केस में आप यूज करोगे. So if you have a female who is not able to produce the gametes, यहाँ पे gametes नहीं बन रहे, but the female is viable enough to have a proper implantation. She can nourish the baby, the body can nourish the baby, but the gametes यहाँ पे बन नहीं रहे. Then in that case, one can go for the GIFT, gamete intrafallopian transfer. Okay. So ovum आप यहाँ पे collect करते हो donor में से, and then this ovum is something which will be sent into the into a female, where you will find the fertilization will happen and implantation will happen, transferred to fallopian tube of another woman. Again GIFT के अंदर आपका fertilization body के अंदर हो रहा है, that means it is going to be a in vivo fertilization. So यहाँ पे in vivo fertilization आपको होते हुए मिल जाएगा. So ये सब हम यहाँ पे discuss कर चुके हैं. We have also discussed what is my AI artificial insemination. आपका यहाँ पे क्या होता है? This is something which happens, is been used when the male is going to have a low sperm count, or the sperm does not have good amount of motility. Either you have a low sperm count or you have a low good amount or less amount of motility. In that case, you can go for the artificial insemination. That is when you can go for the artificial insemination over here. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's start the drill by solving some question. तो कुछ question हम यहाँ पे solve करते हैं. Let's try to understand them. तो ये question जो मैं आपको दे रहा हूँ, it is a mixture of some questions which are coming from the chapter, right from your chapter of flowering plants. So वहां से लेके अभी तक के अंदर जितने भी हमने यहाँ पे किए उसके हम question solve करते हैं. So बताइए 174 का यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना आपको, मैच फॉलोइंग आपको यहाँ पे करना है. सो देखिए ध्यान से, एंड देन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. नॉट रेज योर हैंड, यू कैन आंसर इन द चैट. सो कौन यहाँ पे किसके साथ यहाँ पे मैच करेगा? बताइए बेटा बताइए. So you have a cotyledon, you have epicotyle, plumule, apicotyle. Alright. Cotyledon जो बने यहाँ पे आएगा, it will be a leaf of embryo. मैं कह सकता हूँ ये आपके दो leaf like structure आपको मिलेंगे आपके embryo के आसपास. So that's a leaf of embryo. That's I can say. Then you have something like your epicotyle. Epicotyle आपको जो मिलता है आपके embryonal axis से ऊपर मिलता था. अगर आपको याद होगा तो अगर आपके embryonal axis आपके यहाँ पे होता है, इससे ही आपको ऊपर मिलता है. This upper part used to be called as my epicotyle. चलो अब आंसर आ रहा है मेरे यहाँ पे. तलवारा and one more school, Sangrur has answered this. All right. So yes, epicotyle is a portion above the cotyledon. ये आपका portion होता है above the cotyledon. Right. Hypocotyle मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा? Hypocotyle is a portion below the cotyledon. ये भी हमने देखा था, अगर आपको याद हो तो we have discussed this thing. We have a hypocotyle, we have a epicotyle over here. And the last one is my plumule. Plumule is nothing but my stem tip. So ये आपको यहाँ पे मिलेगा as a match the following. So you'll find your option C here becomes my correct answer. A के साथ 4 आ गया, B के साथ मेरे यहाँ पे 2 आ जाएगा, C के साथ मेरे यहाँ पे 3 आ जाएगा यहाँ पे, and that is when you will find 4 के साथ मेरे यहाँ पे 1 आएगा. So yes, option C बनेगा यहाँ पे the correct answer. ठीक है, थोड़ा आपको यहाँ पे आज active participate करना पड़ेगा. आज हमने question solve करने हैं. We have to solve certain number of questions. So please make sure you be very active in this. Then embryo sac is to ovule as dash is to anther. जो sac जो ओवल के लिए आपके यहाँ पे हो रहा होगा, then is related to what going to be there, dash is going to be for the anther. हाँ बेटा आप अनम्यूट करके आप अनम्यूट नहीं, आप चैट में आंसर कर सकते हो.
ऑलराइट, आप सबका यहाँ पे आंसर आ रहा है, एंड दैट इज गोइंग टू बी ट्रू, दैट्स योर पोलन ग्रेन। बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे। पोलन ग्रेन इज गोइंग टू बी लाइक योर मेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रियो सैक जो आपका यहाँ पे, दैट इज योर फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज योर फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, एन एम्ब्रियो एंड द पोलन ग्रेन विल बी इज गोइंग टू बी माय मेल गैमेटोफाइट। देन ऑटोगैमी कैन अकर इन द चेस्मोगैमस फ्लावर इफ। आपकी ऑटोगैमी आपको यहाँ पे होते मिल सकती है चेस्मोगैमस फ्लावर के अंदर, लेकिन कब? स्टेटमेंट्स बड़े बड़े हैं लेकिन आसान है। ऑलराइट, जलंधर हैज गिवन अस द आंसर, बाकी लोग भी ट्राई करिए। चलिए, तलवारा हैज गिवन अस द आंसर, आसान है, बिल्कुल सही। सो यू विल फाइंडिंग जब आपके पोलन और ओवल आपके साइमल्टेनियसली मैच्योर होंगे, दोनों अगर साथ में आपके यहाँ पे मैच्योर हो रहे, देन यू विल फाइंड कि आपका यहाँ पे ऑटोगैमी आपका हो जाएगा। You will find the self-fertilization will take place over there. So both pollen and ovules mature simultaneously. That will be the correct answer in this. आपको ये बात भी यहाँ पे कहीं ना कहीं याद रखनी है कि प्लांट जनरली अवॉइड करता है, एंड वी हैव सीन दैट प्लांट हैव समथिंग व्हाट यू कॉल्ड एज अ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, हमने ये भी पढ़ा था। तो प्लांट अगर बहुत ज्यादा करेगा सेल्फ पॉलिनेशन, देन उसके लिए वहां पे दिक्कत आ सकती है, दैट कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये भी याद रखना कि हर एक like the plant will prefer to also have sexual mode of reproduction ताकि आपको population में variation मिले। So that is going to be your option C. Then the outermost and innermost wall layer of macrosporangia in an anther are respectively. The outermost and innermost wall layer of macrosporangia in the anther are respectively what? बताइए। Yes, बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे। मोहाली, जलंधर एंड संगरूर, दैट्स द करेक्ट आंसर। योर एपिडर्मिस एंड टिपेटा। आउटर मोस्ट आपके यहाँ पे आपके एपिडर्मिस आपके यहाँ पे हो जाएगा, सो दिस विल बी द आउटर मोस्ट वन, एंड इनर मोस्ट जो आपके यहाँ पे दैट विल बी टिपिटम। सो ये आपका बनेगा आपका यहाँ पे इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर आप जानते हो ये आपका नरिश करता है, आउटर मोस्ट लेयर जो आपका है वो आपका यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा आपके माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। विच इज द मोस्ट क्रूशियल फॉर सीड स्टोरेज। इनमें से कौन सा इवेंट आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको सीड को स्टोर करना हो तो? Which of the following is going to be most crucial for the seed storage? That is always going to be your yes, your dehydration and dormancy. So जब भी आप सीड स्टोरेज की आप बात करते हो, फॉर एज अगर मैं कमर्शियल लेवल पे बात करूं, सो मुझे सीड को स्टोर करने के लिए आई हैव टू एंश्योर दैट दे अंडरगो डिहाइड्रेशन। एक बार मैंने एंश्योर कर लिया कि दे हैव नो वाटर नियर बाय देम और देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ वाटर विद इन द सीड, देन वो आपका काफी लंबे टाइम के लिए रह सकता है, उसे मैं यूज कर सकता हूँ मेरे कमर्शियल पर्पस के लिए, एंड इवन फॉर अगर मुझे एज अ सीड उन्हें यूज करना हो फ्यूचर में, तभी मैं यूज कर सकता हूँ। सो द मोस्ट क्रूशियल point for my seed storage is going to be here to ensure that seeds undergo dehydration and dormancy. अगर आप ये कर सकते हो सीड्स के अंदर, that is what you have to do. ये चीज आपको यहाँ पे करनी होगी, ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, इसका आंसर देना। आपका एंडोस्पर्म जो आपका होता है यहाँ पे, एंडोस्पर्म इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड इन द एंजियोस्पर्म। कोई मुझे बताएगा कि आपका एंजियोस्पर्म, कोई मुझे बताएगा कि आपके जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका एंडोस्पर्म कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर आपका एंडोस्पर्म कैसा होगा? एंजियोस्पर्म में तो आपका होता है ट्रिप्लॉइड। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ploidy of the endosperm in the gymnosperm? Right, Jalandhar, very good. It is going to be haploid in nature. ये आपका haploid, ये याद रखना, ये कई बार आ जाते सवाल। You will find these questions also showing up in the somewhere, so you should know that gymnosperms is going to be haploid, इनका होता है यहाँ पे एंडोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म के अंदर इट इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड इन नेचर। और एक और बात याद रख लो, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो आपका एंडोस्पर्म बनाया जाता है, इट इज फॉर्म प्री फर्टिलाइजेशन। मतलब यहाँ पे कोई मेल गैमेट के आने का वेट नहीं किया जाता, उसके पहले ही आपका ये बन जाता है। सो याद रखना, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो आपका एंडोस्पर्म यहाँ पे होगा ना, दैट इज फॉर्म प्री फर्टिलाइजेशन, इट इज बीन फॉर्म्ड प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने के पहले ही ये बन के रेडी हो जाता है। एंजियोस्पर्म में बात अलग होती है। एंजियोस्पर्म के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन यू विल फाइंड दैट ऑल योर एंडोस्पर्म इज गेटिंग फॉर्म, बट ये पहले बन के आपका रेडी हो जाता है और ये आपका होता है हैप्लॉइड इन नेचर। चलो,
बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है? देखिए ध्यान से एंड टेल अस दैट व्हिच ऑफ देम इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट पेयर। क्या लग रहा है आपको कि इनमें से कौन सा आपको यहाँ पे गलत लग रहा है? ध्यान से देखिए। बताइए which of them is going to be incorrect pair? So I've received some answers over here. Jalandhar, Sangrur के आंसर यहाँ पे आ चुके। Anyone else wants to answer this? Talwara has also answered this. चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। Let's have a look. क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? लेडिक सेल्स होते हैं आपके सिक्रेट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन। दैट्स ट्रू। लेडिक सेल्स ही आपके यहाँ पे रिलीज करेंगे आपके यहाँ पे एंड्रोजन। माइक भी निकली। सर आप म्यूट हो। All right, ठीक है। Now I hope you will be able to hear me again. I think there are some at times it does happen कि या टेक्निकली आप हो जाता है म्यूट अपने आप। बट ऐसे ही बता दो आप लोग मुझे। या थैंक यू। ओके या लेट्स कम बैक। So now you will have over here like option C हम यहाँ पे देख लेते हैं। वास्ट डिफरेंस लूप्स ओवर यूरिनरी ब्लैडर। अब ये बात जो यहाँ पे लिखी गई ना कि आपका जो वास्ट डिफरेंस आपका होता है वो आपका ब्लैडर के ऊपर से पूरा कर्व टर्न मार के आ रहा होता है नीचे। ये बात आपके यहाँ पे सही है। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। आपका वास्ट डिफरेंस पूरा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर कर्व करके नीचे आ रहा होता है। अगर आप पिक्चर देखोगे तो आपको रियलाइज होगा दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ये गलत नहीं है। लेकिन आप इसे देखो यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट, वास एफरेंशिया एंड सेमानल वेसिकल। अरे सेमानल वेसिकल एंड वास एफरेंशिया अगर आप यहाँ पे देख सकते हो राइट। सो यू विल फाइंड द वास एफरेंशिया इज नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय इजैकुलेटरी डक्ट ओवर हियर। सो दैट इज व्हाई यू विल सी ये दोनों मिला के ये दोनों मिलके आपका सॉरी ये दोनों मिला के आपका इजैकुलेटरी डक्ट आपका नहीं बना रहे थे। आपका वास डिफरेंस और सेमानल वेसिकल मिलके बना रहे थे आपका इजैकुलेटरी डक्ट। याद करो आप this is something they were forming. So ejaculated duct आपका बंद कहां से रहा था? Using your vas deferens and seminal vesicle. ये दोनों मिलके आपका बना रहे थे आपके यहाँ पे ejaculated duct, not your vas efferentia and seminal vesicle. इसलिए ये आपका यहाँ पे हो जाता है आपका false. तो this is why you will find option D जो बना आपका बनेगा आपका यहाँ पे ये आपके यहाँ पे false statement होगा. This will be my false statement. So option D is not going to be a correct answer in this. ठीक है? That is a correct answer. That is something you have to know. All right, चलिए next. इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आपके यहाँ पे क्या आंसर यहाँ पे आ जाएगा? मैच जो फॉलोइंग आपके सामने यहाँ पे the ovaries are located on each side of the dash. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in the length, connected to the B dash wall by dash. तो आपका यहाँ पे fill in the blank आपको यहाँ पे करना है। कर सकते हो, आसान ही है। So military school Jalandhar has given me the answer. Sangrur has given us the answer. चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे द ओवरीज लोकेटेड ऑन द ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ये आपका यहाँ पे आपको आंसर आपका मिल जाता है। ए ब्लैंक आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ राइट एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। बिल्कुल आपकी पेल्विक वॉल से लगी होती है बाय लिगामेंट्स विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट्स। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय एपिथेलियम व्हिच एनक्लोज द ओवरियन स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज इनटू टू जोन्स दैट्स माय पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। तो आपका ऑप्शन बी बनेगा आपका करेक्ट आंसर। सिंपल। सो यस बी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। जिन्होंने यहाँ पे बी किया था उन सबका आंसर यहाँ पे सही है। द मेन फंक्शन ऑफ फिमरिया ऑफ अ फेलोपियन ट्यूब। आपके जो फेलोपियन ट्यूब में जो फिमरिया होता है
उसका मेन फंक्शन आपको यहाँ पे क्या होते हुए मिल जाएगा, व्हाट कैन द मेन फंक्शन ओवर हियर? सो संगरूर ने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, दैट्स योर ऑप्शन बी. सेम थिंग गोस फॉर जलंधर एज वेल. एनीवन एल्स? बाकी स्कूल भी ट्राई कर सकते हैं. सो मेन फंक्शन आपके फिमरे का जो आपको यहाँ पे हो जाएगा, फिमरे ऑफ फेलोपिड विल बी इज गोइंग टू बी योर, इट एक्चुअली हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर फर्टिलाइज ओवुलेशन. तो यहाँ पे करता क्या है ना वो, इट इज गोइंग टू कलेक्ट द ओवम, इज गोइंग टू हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन. तो ये फिंगर लैग प्रोजेक्शन ये कलेक्ट करके उसे पुश करते हैं टुवर्ड्स द एम्पुला स्टिमा की तरफ. तो ये आपका ओवम को कलेक्ट करेगा आपका फिमरे एंड विल पुश इट टुवर्ड्स द एम्पुला स्टिमस की तरफ ये पुश करेगा. सो यस, ऑप्शन बी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर. Helps in the collection of the ovum after ovulation. Which of the following undergoes meiosis 1 during the spermatogenesis? इनमें से कौन होता है which undergoes my meiosis 1 during the spermatogenesis? ध्यान से देखिए. Take your 30 seconds and then you can give your answer. Just wait a minute, people. Just give me a minute. Right, that's option A becomes my correct answer in this. बिल्कुल सही ऑप्शन आपको बनेगा यहाँ पे as a correct answer. That's very true. Okay, so now let me again come back over here. So अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो that you have your option A becomes a correct answer in this, then yes, that's a correct answer over here. Which of the following undergoes meiosis 1 division during the spermatogenesis? That's a primary spermatocyte. So using my primary spermatocyte, I will be finding कि आप यहाँ पे अपना meiosis 1 अपने यहाँ पे आप कर सकते हो. ठीक है? So this is what you have to know in this कि आपका primary spermatocyte का इस्तेमाल करके like this will undergo the meiosis over here and will make the gametes in this. So option A बनेगा आपके यहाँ पे correct answer. अगर meiosis 2 लिखा होता then you could have gone for the secondary spermatocyte, आपने यहाँ पे किया होता. Now क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे, which one of the labeled parts utilize the fructose as a source of energy? इनमें से कौन सा आपका बनेगा यहाँ पे as a source of energy यहाँ पे, बताइए. सो आपका फ्रुक्टोज बेसिकली आपका जो इस्तेमाल होता है आपके पास जो सीमन के अंदर आपको मिलेगा, इनमें से कौन सा पार्ट होगा स्पर्म का जो उसे इस्तेमाल करेगा? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन विच यू कैन आंसर ओवर हियर. बताइए. यू नो फ्रुक्टोज इज यू विल गेट इन द सेमिनल फ्लूइड के अंदर. नाउ थिंक, इसको आप इस तरह से ओके. ये वाला सवाल हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे. दैट्स योर ऑप्शन ए, यहाँ पे आपका सही था. नाउ टेल मी द आंसर फॉर दिस. Which of the labeled part utilizes the fructose as a source of? इनमें से कौन सा labeled part जो आपको यहाँ पे होगा यहाँ पे इस्तेमाल करेगा fructose as a source of energy? Okay, so now you have answered over here. सबके आंसर यहाँ पे आ रहे हैं. And that is going to be your middle piece, right? Middle piece को यहाँ पे आप use करोगे as a source of energy because middle piece will be having your, this is the area which will be having the mitochondria. So middle piece के अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ कई सारे mitochondria. They will be having the mitochondria and once you have a large amount of mitochondria in them, ये इस्तेमाल करेंगे आपके यहाँ पे एनर्जी को so that they can generate the energy to swim. तो इसके वजह से आपका फ्लैजेला ज्यादा मूव करेगा and then you can reach to the fallopian tube. So right, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. If the अब ये यहाँ पे ध्यान से देखना, if a mammalian ovum fails to fertilize, which of the following is likely to happen?
अगर मैमलियन ओवन यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होता देन इनमें से कौन सी चीज आपकी लाइकली यहाँ पे हो जाएगी? आई होप यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है. इफ अ मैमलियन ओवन फेल्स टू फर्टिलाइज, बेटा ऑप्शन डी कैसे आएगा? ऑप्शन डी क्यों आएगा? इफ अ मैमलियन ओवन फेल्स टू फर्टिलाइज, मतलब अगर आप मैमलियन ओवन जो आपका है अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, तो बेटा प्रोस्टेरॉन थोड़ी आपका यहाँ पे फिर आएगा. अगर ओम फर्टिलाइज नहीं हुआ देन you can expect now the menstrual flow will happen, and in that case you will find कि आपका corpus luteum पहले यहाँ पे जाएगा. So corpus luteum will degenerate and later on slowly you will find everything will get sloughed off and will come out in a form of the blood. So yes, option A बनेगा यहाँ पे आपका correct answer, not your option D. So अगर mammalian ovum अगर fertilize नहीं होता then the corpus luteum is the one which will undergo degeneration. और जब ये degenerate आपका यहाँ पे करेगा so everything will come out in a form of the blood. ठीक है. और ऐसा नहीं कि किसी एक ने आंसर किया सब लोग वही आंसर करें. टेक योर टाइम एंड देन थिंक एंड गिव योर आंसर कि ए है तो यही होगा. अगर जलंधर ए कह रहा है तो सब लोग यही बोलेंगे. डोंट डू दैट. ओके, नेक्स्ट. ध्यान से देखो सवाल को एंड टेक योर टाइम. टेक योर 30 seconds एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर. Blastocysts consists two type of cells. You have to tell me what are those two type of cells are going to be. All right, we are receiving some answer in this. एंड आई होप सबने सोच के सबने आंसर किया है बिकॉज आंसर आपके यहाँ पे सबका सही है. इट इज माय ए. आपके लाइक टू सेल्स यू कैन फाइंड इट ब्लास्टोसिस्ट. यू हैव अ ट्रोब्लास्ट एंड योर इनर सेल मास. याद रखना ट्रोपोब्लास्ट सेल्स आर द सेल्स यू फाइंड इन द सराउंडिंग, मतलब आउटर लेयर. सो आउटर लेयर जो आपको मिलती है आपके ब्लास्टोसिस्ट की, दैट्स माय ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट, राइट. एंड द इनर सेल मास जो आपको मिलेगा दैट विल बी अ कॉम्पैक्ट स्मॉल एरिया यू विल फाइंड इन द सेंटर. दैट्स योर इनर सेल मास. यहाँ पे तो ये चीजें आपको मिल जाती है. दैट्स योर ऑप्शन ए. दैट्स इट करेक्ट आंसर. नाउ चूज द इनकरेक्ट पेयर. इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे इनकरेक्ट पेयर है? So tell us which of them is going to be incorrect pair. एनसीईआरटी की लाइंस आपको अगर याद है तो आप इसका आंसर दे सकते हो. संगरूर ने यहाँ पे आंसर कर दिया और उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है. यस, इट इज योर एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स. ये बात आपके यहाँ पे सही नहीं है. दैट इज इनकरेक्ट. लेकिन बाकी चारों ऑप्शन, बाकी तीन ऑप्शन उसके अलावा आपके यहाँ पे सही हो जाता है. सो दिस माइट बी योर इनकरेक्ट वन, right? Heart, after 1 month of pregnancy, you can see the heart formation can be seen. Limbs and digit by the end of the second month of pregnancy, and first movement of the fetus by the 5th month. ये सारी आपकी एनसीईआरटी की लाइंस है. तो ये सब तो आपको बहुत क्लियर कट मालूम होना चाहिए. बट ऑप्शन सी बिल्कुल आपके यहाँ पे इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर. इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट. सो दैट्स व्हाई इट्स गोइंग टू बी करेक्ट आंसर फॉर यू. Then this one. Now be very careful while solving this question. The presence of HCG in women urine is a basis form of the pregnancy test. The presence of HCG in women urine is a basis of pregnancy test. A woman passes out HCG in urine during the pregnancy. So बताइए. ऑप्शन सी मिला मुझे, ऑप्शन ए मिला मुझे यहाँ पे. Now many people are saying option A यहाँ पे. Now if you are going with your option A, if you happen to go ahead with your option A, then that is going to be a correct answer. ये आपका आंसर सही हो जाएगा बिकॉज यू शुड नो दैट. यस, सबको बताना चाहूंगा ये चीज काफी क्लियरली दैट एचसीजी यस यू विल फाइंड इन द ह्यूमन यूरिन के अंदर आपको मिल जाता है. लाइक प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन के अंदर आपको मिलेगा. दैट्स वन थिंग. एंड ये प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है. HCG इज समथिंग ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इज कमिंग फ्रॉम प्लेसेंटा. दो चीज याद रखना. ये आपका आ रहा होता है फ्रॉम प्लेसेंटा. इज कमिंग फ्रॉम प्लेसेंटा. That's one thing you have to know.
और सेकंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो एक प्लेसेंटा से आपका आ रहा होता है, दूसरी बात आपको यहाँ पे याद रखना, दिस HCG जो आपका प्लेसेंटा से आ रहा होगा, इसका काम क्या होता है, इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन क्यों करता है, ताकि वो प्रोजेस्टेरोन वहां से बना के रिलीज करता रहे, बाद में वो निकल जाता है कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर 3 weeks, यू विल आल्सो फाइंड गेटिंग डीजेनरेटेड, बट इनिशियल स्टेज पे ये मेंटेन करे मेरे कॉर्पस ल्यूटियम को, ताकि वहां से आपका बनता रहे, आपका प्रोजेस्टेरोन वहां से आपका हमेशा बनता रहे, ठीक है। सो ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे राइट आंसर, दैट्स द करेक्ट आंसर इन दिस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्लेसेंटा, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है प्लेसेंटा को लेके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्लेसेंटा। संगरूर हैज सेड डी, तलवारा हैज सेड ए, now Talwara has said D again, and Amritsar and all other schools are saying option D. ऑप्शन डी अगर आप मुझे आप बता रहे हो तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर है। इट फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, दैट्स ट्रू, ये बात आपके यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है। इट इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट्स आल्सो गोइंग टू बी ट्रू। इट रिमूव्स द CO2 and excreted material produced by the embryo, that's right over here, and all of the above. So you'll find option D बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। टेल अस, करिए मैच द फॉलोइंग और बताइए कि इसमें किसमें आपका क्या मैच यहाँ पे आपका हो जाएगा। सो व्हाट विल बी मैचिंग ओवर हियर। नो, ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग बहुत जल्दी जल्दी। सो ऑल ऑफ यू आर सेइंग योर ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो टेस्टिस जो आपके यहाँ पे भी आपकी मैच करेंगे यहाँ पे आपके स्ट्रोटम के साथ, जहाँ पे उन्हें आप प्लेस करते हो। वल्वा इज अ एक्सटर्नल जेनिटेलिया which will match with the labia major. Prostate fluid is a fluid released from one of the prostate gland, and that fluid will give a specific constituent to the semen. And production of ova is going to be formed by oogenesis. ठीक है? So yes, you will find these all four are going to be matching over here, and that is why you will find option A becomes the correct answer in this. So option A बनेगा आपके यहाँ पे ऐसा correct answer. Which of the following contraceptive method do not involve a role of a hormone? Take your time and give me a correct answer. इनमें से कौन सा आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसके अंदर आपका कोई हार्मोन का रोल होता ही नहीं है? ओके, आई एम रिसीविंग सम आंसर्स। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऑप्शन बी कह रहे हैं। जो लोग मुझे ऑप्शन बी कह रहे हैं यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, क्या पिल्स डू नॉट हैव एनी हॉर्मोन्स? don't we know that pills do have some hormones over there? Okay, we have to tell them do involve the role of the hormone. Okay, so which of the following concepts do involve the role of the hormone? इनमें से कौन से आपके contraceptive which will have the hormones over there? So yeah, tell me. अच्छा, टेल मी समथिंग, अगर आप ऑप्शन बी मुझे यहाँ पे कह रहे हो, देन टेल मी दैट CUT जो आपके यहाँ पे होता है, ये तो आपका सिर्फ कॉपर आयंस को रिलीज कर रहा था, तो ये तो कहीं हार्मोन यहाँ पे रिलीज कर नहीं रहा, तो आपका ऑप्शन बी तो आपके यहाँ पे सही आंसर है नहीं, अगर आप मुझे ऑप्शन बी यहाँ पे कह रहे हो तो। सो टेल मी समथिंग एल्स, और क्या हो सकता है यहाँ पे? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको बताने यहाँ पे विच विल इन्वॉल्व द रोल ऑफ द हार्मोन, यहाँ पे आपके हार्मोन्स आपके इन्वॉल्व होंगे, सो ये तो आपका होगा नहीं, दिस वोंट बी अ केस। ए भी नहीं होगा बेटा, ए भी नहीं होगा। ए के अंदर बैरियर मेथड पे थोड़ी आपके यहाँ पे कोई हार्मोन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। When I use a barrier method, the barrier method does not involve any hormones. Your condoms, diaphragm won't involve them, so that's going to be untrue. सी देखो आप यहाँ पे, सी में आपका बैरियर मेथड आपके यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। बट डी आपका यहाँ पे हो सकता है। योर लैक्टेशनल एमेनोरिया भी आपका जो हो रहा होता है, इट इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंज इन द फीमेल बॉडी, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर देयर हैज बीन अ हार्मोनल चेंज, बिकॉज ऑफ दैट द मदर विल नॉट गेट कंसीव फॉर नेक्स्ट 6 months, तो यहाँ पे हार्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट है। Similarly, pills and emergency contraceptive, all of them will have a role of the hormones. So इन सबके अंदर आपके hormones का रोल यहाँ पे आपका होगा।
So that is why option D here becomes my correct answer. तो D आपका यहाँ पे true statement आपका यहाँ पे होगा. All of them will have a rule of the hormone. Now, tubectomy is a method of sterilization in which क्या किया जाता है ट्यूबेक्टोमी के अंदर. So what do you find happening in a tubectomy? आप सबका यहाँ पे आंसर यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ए, जो आपका आंसर यहाँ पे सही है. सवाल आंसर आसान था, आपने आंसर भी यहाँ पे सही से कर दिया है. मुझे आप ये बताइए, आप बस मुझे यस या नो टाइप करना चैट के अंदर. आफ्टर ट्यूबेक्टोमी विल देयर बी ओव्यूलेशन टेकिंग प्लेस मंथली. ट्यूबेक्टोमी कराने के बाद क्या फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होते हुए आपको मिलेगा वहां पे मंथली बेसिस पे, जो नॉर्मल ओव्यूलेशन हो रहा था, क्या ट्यूबेक्टोमी कराने के बाद आपको यहाँ पे होगा? यू कैन आंसर मी. वाई के लिए यस एंड एन के लिए नो. नो के लिए एन. So will you find that ovulation happening on a monthly basis after tubectomy? No. Okay, now let me tell you one thing. This will happen. Tubectomy कराने के बाद you will find the ovulation will happen. The only thing is वो ओवा कभी पहुंच नहीं पाएगा, ओवा कभी मीट नहीं कर पाएगा आपके मेल गैमेट के साथ. बट रेगुलर जो साइकिल होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो रन करेगा आपका. That will be happening over here. So you'll find in the human female, you find that the regular menstrual cycle will happen. That's one thing you have to know. And you will find the ova formation will also happen. The hormones will also come. The only thing which won't happen here is going to be that ova will never have a chance to meet to the sperm. Similarly, when a male undergoes a vasectomy, when a male individual undergoes a vasectomy, then you will find the gamete formation will not stop. The spermatogenesis will keep on happening. The only thing is those sperms will never have a window to meet to a female gamete. तो याद रखना, बाकी सब आपका चलता है, बस वो आपका ब्लॉक बन चुका है कि वो मेल गैमेट आपको मिल नहीं सकता स्पर्म के साथ, या फिर फीमेल गैमेट आपका मेल स्पर्म के साथ मिल नहीं सकता. बाकी सारे जो आपके इवेंट्स होते हैं वो आपके यहाँ पे नॉर्मली आपके यहाँ पे हो रहे होंगे. सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर. चलिए, इन ह्यूमंस द क्रोमोसोमल कंडीशन ऑफ अ मेल इज गोइंग टू बी व्हाट? जनरली क्रोमोसोमल कंडीशन मेल के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिल जाती है? एक नॉर्मल बेन के अंदर क्या मिलता है क्रोमोसोमल कंडीशन यहाँ पे? राइट, दैट्स ट्रू. 44 autosomes and 2 your sex chromosome. That's a 46. ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा. बताइए, खुद से क्वेश्चन को रीड करिए एंड गिव मी द करेक्ट आंसर. दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे आंसर. दैट इज माय गैमेट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर. And this is something which has been done with the females, which generally are not able to produce the gametes. But यहाँ पे implantation आपका बॉडी के अंदर हो रहा है. इवन फर्टिलाइजेशन यहाँ पे आपका बॉडी के अंदर ही होगा. The permissible use of technique of amniocentesis is for. amniocentesis आप अलाउ कर सकते हो in a certain condition. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. कौन है ये ऑप्शन ए वाले हमारे साथ? जलंधर एंड तलवारा. वेरी गुड. एंड अमृतसर एज वेल. ऑप्शन ए, टेकिंग द सेक्स ऑफ अनबॉर्न फीटस. अरे ये अलाउ थोड़ी करते बेटा, इट इज नॉट परमिसिबल, ये तो इलीगल होता है. सो परमिसिबल यूज जो आपका होता है एमनियोसेंटेंसेस का, दैट इज गोइंग टू बी टू डिटेक्ट द जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी. ये आप कर सकते हो. If the couple are slightly unsure or they just want to check whether they have any possibility of genetic abnormalities, then they go for this option D, right? Like they go for this amniocentesis. So याद रखना, amniocentesis आप करा सकते हो only in certain conditions. उनमें से एक कंडीशन आपके यहाँ पे ये है that when there's going to be a possibility of any kind of genetic disorder in the baby, तो ये कराया जा सकता है. क्योंकि अगर कोई डिसऑर्डर वहां पे है, then it also gives you a permission to undertake the लीगलाइज अबॉर्शन, दैट इज योर एमटीपी. तो ये बात आपको याद रखनी है. सो ऑप्शन ए नहीं आएगा, ऑप्शन डी आएगा इसके अंदर, जो बाद में आप लोगों ने कर दिया था सही आफ्टर सेइंग ए. तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, ये याद रखना. चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इज. इनमें से कौन सा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका होगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का?
Mohali, Bhatinda, Talwara, and Amritsar, and Sangrur. All of you have given me the correct answer, and बाकी लोग भी. It is my progesterone. जब तक प्रोजेस्टेरॉन आपका आ रहा है पिल्स के अंदर, that is going to inhibit the like that is going to avoid any kind of like possibility of ovulation. So आपको ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है that प्रोजेस्टेरॉन के बारे में आपको बताया था that this hormone is known to suppress LH and FSH. ये LH और FSH के सिक्रीशन को सप्रेस करता है. So LH और FSH सिक्रीशन को ये आपका यहाँ पे सप्रेस करेगा. That is something done by प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. Embryo with more than 16 blastomere formed due to in vitro fertilization is transferred into. अगर 16 blastomere अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो आप उसे कहाँ पे ट्रांसफर करोगे? Very good, Sangrur, very fast. There is one more school, and all the other people have answered this very quickly. Yes, I am going to transfer them into the uterus. ठीक है. So embryo with more than 16 blastomere formed due to in vitro fertilization is transferred to the uterus. हमेशा. That's true. Fallopian tube में तब होता है जब when you have a less than 8 blastomere stage. The test tube baby program employs which of the following technique? जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम की बात करते हैं तो उनमें से कौन सी टेक्निक को हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, जिसका हम यहाँ पे ध्यान देंगे? ऑप्शन डी, ज़ायगोट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर. ZIFT जो आपका यहाँ पे होता है ना, इसके लिए हम वो टर्म इस्तेमाल करते हैं. तो ये बात दिमाग में बिठा दो, आप इसका रट्टा ही लगा लो कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम अगर आपके सामने ये टर्म बोले कोई, तो यू शुड टेल देम ZIFT. ज़ायगोट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर के लिए हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम हम यहाँ पे बोलते हैं, बिकॉज द फर्टिलाइजेशन इज हैपनिंग इन द टेस्ट ट्यूब, दैट्स इन विट्रो, एंड देन बाद में उसे आप ट्रांसफर करते हो आपके फीमेल बॉडी के अंदर. सो यस, ऑप्शन डी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर, ज़ायगोट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर. बताइए, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स व्हाट? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हियर? Take your time and give me the correct answer in this. It is going to be your option A. Option A बनेगा आपका यहाँ पे सही आंसर. Artificial introduction of a sperm of the healthy donor into the vagina. ये आप यहाँ पे करते हो, right? बाकी कोई ऑप्शन आपके यहाँ पे सही नहीं है. The option A becomes the correct answer in this. So artificial introduction of the sperm of the healthy donor to the vagina. This is called as my AI. Introduction of sperm of a healthy donor to the ovary. ये बात आपके यहाँ पे गलत है. That's wrong. Transfer of sperm of a healthy donor to the test tube. That's also going to be wrong. And transfer of sperm of the husband to the test tube. That's also going to be wrong. So introduction of a sperm into the vagina of the female. That's going to be your artificial insemination. That's your option A. ये आपको यहाँ पे रखना है याद. That's one thing you have to know. और याद रखना, जब आप ये ट्रांसफर करते हो यूट्रस के अंदर, then you call them as a IUI, intrauterine insemination. ठीक है. So this is what we have solved. These are the questions we have solved over here. And next time हम लोग जब मिलेंगे, we'll be starting with a new chapter. That is going to be the principle of inheritance and variation. तो वहाँ से हम start करेंगे, and that is something we'll do. Right? If you have any question, then please go ahead and ask your question. अगर कोई आपके यहाँ पे सवाल है तो आप अपना सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो. So please ask your questions if you have any questions. If you have no questions, then we can wrap this up. We'll catch you again after some time. That is going to be Monday.